এসে গেছে তো ম্যাডাম ম্যাডাম এসে গেছে। তো ম্যাডামকে আমি যখন এখন কথা বলাই যাচ্ছে, আমি একবার একটু 2 মিনিট কথা বলে নিই সকলের সাথে। হ্যাঁ, যেহেতু কথাটাই বলা যাচ্ছিল না, তো আমাদের থিমটা আরেকবার আমরা রিপিট করছি যে আমাদের সবচেয়ে সাম্প্রতিক যে আমাদের মধ্যে ঘটনা, সেটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে নিয়ারেস্ট এবং ডিয়ারেস্ট তমালদা, যিনি অসুস্থ হয়েছিলেন, এবং যার ফলে আমরা কিন্তু সকলে সেইটা থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে, তা থেকে আমাদের একটা জিনিস আমরা পরিষ্কার হয়ে গেছি যে শুধু টাকা বা অর্থ দিয়ে কিন্তু আজকের দিনে সার্ভাইভ করা যাবে না, এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় যে এখন আমরা যে পরিস্থিতিতে এসেছি, আমরা যদি একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা না করি, তাহলে পরে তার মেডিক্লেম পলিসি থাকলেও সে সার্ভাইভ করবে না। মেডিক্লেম টাকা পয়সা থাকলেও যেমন করবে না, মেডিক্লেম পলিসি থাকলেও হবে না। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের একটা মানসিকতার মানুষ আমাদের হতে হবে, যে যাতে আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি, অর্থ দিয়ে নয়। সেটা হয়তো কোনো ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করে, বা হয়তো কেউ কারো মাধ্যম দিয়ে তার কাছে পৌঁছানো, যার যেটুকুনি দরকার হবে। হয়তো কারো একটা মেডিসিন পৌঁছতে হতে পারে, কারো হয়তো একটা খাবার জিনিস পৌঁছতে হতে পারে, ক্রাইসিস হতে পারে, যে কোনো। এনিওয়ে, মোট কথা একটা নেটওয়ার্ক আমাদের চাই, এবং সেটা অ্যাক্রস দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, এবং প্রত্যেকটা অঞ্চলেই আমাদের নেটওয়ার্কের লোক সবাই থাকবে। যখন যেখানে কিছু সমস্যা হবে, যাতে আমরা সবাই সবাইকে হেল্পটা করতে পারি। তার মধ্যে এর মধ্যে আমাদের গ্রুপ মেডিক্লেম বা গ্রুপ টার্ম পলিসি, সেগুলো আমরা এগুলো তো অ্যাড অন থাকবেই, এবং সেক্ষেত্রেও সেটাকে হেল্প করার জন্য তো গ্রুপ পলিসি পেতে গেলে প্রথমত আমাদের গ্রুপটাকে একটা বড় গ্রুপ হতে হবে, নাহলে গ্রুপের ডিসকাউন্টটা কিন্তু আমরা পাবো না, সেই বেনিফিটটা আসবে না। গ্রুপ মানে তো আর 10 জন 20 জন বা 50 জন নয়। গ্রুপ মানে যাতে 1000 2000 5000 লোক হবে, সেটা হচ্ছে গ্রুপ, এবং যে ক্ষেত্রে সবার বেনিফিটটা আসবে। তো এটা মূলত এই বিষয়। তো আমি এখানে আমাদের এখানে যারা আছে, এর মধ্যে সুব্রত সরকার আছেন এখানে? সুব্রত আছো? দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ আছে। তো সুব্রত শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, তোমারও ভয়েস ব্রেক করছে, তোমারও নেটের প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে। কথা বলা যাচ্ছে না, মানে অসুবিধাই হচ্ছে। তো আর সুবীর নন্দী আছে আমাদের বাগুইহাটি থেকে। সুবীর নন্দী, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যালো, প্লিজ রেসপন্স। সুবীর নন্দী। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ, আপনার যে অভিজ্ঞতাটা, আজকে আপনার সব নিয়ারেস্ট দাদা যে লালবাজারে ছিলেন মারা গেলেন, তো এই ধরনের যে আজকে এত বড় একটা ক্ষমতা থাকা, এত পয়সা থাকতেও কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। তো বেস্ট এন্ড বেস্ট ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। হ্যাঁ, সেখানে আমার মনে হয় সুবিধা একটু ইয়েটা ভিডিওটা অন করে দিলে সবার সুবিধা হয়, কারণ আমাকে একটু 2 মিনিট একটু টাইম দিন। আপনি এটা কন্টিনিউ করুন, আমায় জাস্ট 2 মিনিট একটা, আমি ফোনে ওয়েট করছিলাম, জাস্ট 2 মিনিট দিন, আমি জয়েন করে যাচ্ছি। 2 মিনিট। ঠিক আছে। তা আমি ততক্ষণে আমি আরো যারা আমাদের মধ্যে আছেন, যেমন সুব্রত বসু, কাইন্ডলি যদি একটু বলেন, কারণ একটু ইন্ট্রোডাকশনটা দরকার, আর উনি তো আছেন। হ্যাঁ, এটা নিয়ে তো আগের দিন আমরা কথাবার্তা বলেছি। হ্যাঁ, আমরা এটা দ্বিতীয়, আমি বলছি ভিডিওটা অন করে দিন। না লোকে বুঝতে পারবে না যে কথাটা কে বলছে, সবার একটু দেখলে ভালো। হ্যাঁ, তো ঘটনা হচ্ছে যে আমরা তো এর আগের দিন এটা নিয়ে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু নেটের প্রবলেমের জন্য আমরা অনেক কিছুই বলতে পারিনি বা জানতেও পারিনি। তো এর আগের দিন আমাদের এখানে মিস্টার সারোগী মনে এসেছিলেন। আছে, আজকেও আছে মিস্টার সারোগী আছে। ওনার কিছু মূল্যবান মতামত আমরা সেদিন উনি দিয়েছিলেন। আজকে উনি ডেকে নিচ্ছি, ওনাকেও একটু ডেকে নিন। আর মোটামুটি দেখুন, মেডিক্লেম নিয়ে কাজ করে এরকম অনেকেই, যেমন সুরজিৎ আছে, আমাদের জয়ন্ত ঘোষ বলে একটি ছেলে, ওর জয়েন করেছে, ও আছে। হ্যাঁ,
এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা কিন্তু কিছু মূল্যবান মতামত পেতে পারি, কারণ এটা খুব এক্সপিরিয়েন্স, অনেক ফার্দার ঘুষো ভাই রাজেশ এই কাজ করছে। তো আমরা চাইছি যে ব্রোকার হাউস থেকে, ব্রোকিং হাউস থেকে প্লাস আমাদের অন্যান্য যারা মেম্বার আছে যারা এটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের কাছ থেকেও আমাদের মূল্যবান মতামত গুলো আজকে নেবো, দিয়ে আমরা সেইভাবে কিভাবে প্রসিড করা যায় এটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো। হ্যাঁ একদম ঠিক কথা। তো এখানে দেবাশিস গোস্বামী, আপনার আপনার অভিজ্ঞতাটা আপনি বলুন। আচ্ছা সুবিদ নন্দী এসে গেছে। সুবিদা একটু কারণ সবচেয়ে মোস্ট ভাইটাল যেটা আমার আরো শকড হয়ে গেছে যে ওইরকম একটা জায়গা থেকে বেস্ট সে নিজে লাইফটা সেভ করা গেল না, একজন কৃতি মানুষ। দাদা অ্যাকচুয়ালি ছিল হচ্ছে ওসি ইকুইপমেন্টস লালবাজারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই পজিশনে থেকে এত কন্ট্যাক্টস, এত স্টেট গভর্নমেন্টের সাপোর্ট, মানে স্টার্টিং হয় বেলভিউতে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে ওখান থেকে ফোর্টিস, তারপরে দিশানে গিয়ে লাস্টে আর দাদা রিকভার করতে পারলো না। তো এখানে আমি একটা জিনিস দেখে নিয়েছি, কোভিডে আজকে অ্যাভারেজ আমি বিল যা শুনছি আমার রিলেটিভ বা ফ্রেন্ড সার্কেল বা আমাদের কলকাতার কিছু যারা প্র্যাকটিসিং একদম ক্রিমিনালে আছে, পয়সাটা কোনো ফ্যাক্টরই নেই। মানে 10-12 লাখ সেদিন শুনলাম একজন ডাক্তারকে বিল করেছে 23 লাখ। ফ্যাক্টর সেটা না, ফ্যাক্টর হচ্ছিল কি একটা ইউনিটি। মানে আজকে মানে হ্যাটস অফ টু গৌতম দা যে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, এতজনকে একসাথে করে একটা মানে প্ল্যাটফর্ম করার চেষ্টা করছে, যেখানে সবাই পয়সা কম বেশি সবার আছে, সাপোর্ট সেটা হতেই পারে, বাট মেইন হচ্ছিল গিয়ে ম্যান পাওয়ার আর কন্ট্যাক্টস, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি এই ক্ষেত্রে দেখেছি। তো সেটার জন্য আমাদের মানে ইউনাইটলি উই স্ট্যান্ড টুগেদার, মানে এটা খুব দরকার আমার মনে হয়। এবং একদম সুবিধা একটা কথাই বলি, এখন করোনাটা হয়ে গেছে ঢাল ঢাল হিসেবে করোনাটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ করোনাটাকে ঢাল করে সে এটাকে অ্যাভয়েড করছে, অন্যকে কোনো কিছু হেল্প করতে না, এবং প্রয়োজনে করোনাটাকে ঢাল করে যেমন গ্রামে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়, তেমনি যার বাড়িতে হয়তো করোনা হয়নি তাকে একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে যাতে সে কমিউনিকেট না করতে পারে। এটা এটা শুধু গ্রামে না, শহরে পর্যন্ত। আজকে মেদিনীপুরে একটা ডাক্তার ফ্যামিলিকে পুরো একঘরে করে দিয়েছে, মানে তাদের করোনাই হয়নি। তো এই করোনার এখানে গৌতমদা একটু ইন্টারাপ্ট করছি, এখানে কিছু কিন্তু লোকেদের সচেতনতারও অভাব আছে। আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি, আমার বিল্ডিং থেকে 4-5টা ফ্ল্যাট পরেই একটা বাড়িতে হয়েছে, এটা কালী মন্দির বলা হয়। সেই কালী মন্দিরের যে লোকটার করোনা হয়েছে, সে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে ইনিশিয়ালি ফেজেও মানে যাতা মানে অবস্থা। তা আমাদের অ্যাওয়ারনেসটাও একটা তো অভাব রয়েছে, বিরাট একটা মানে অভাব রয়েছে। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে লোকে একটা অজুহাত পেয়ে গেছে যে আরে বাবা করোনা হয়েছে তো ঠিক আছে, মানে ওর থেকে ওকে একটা সাইড করে দাও। মানে এটা কিন্তু খুব মানে একটা জিনিস থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, বেলুর মঠকে দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বেলুর মঠের সব ইন্টেলেকচুয়ালরা থাকে, ওরা আজকে কিন্তু পরিষ্কার ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। যতদিন না ওরা মনে করবে যে এটা সেফ, ততদিন কাউকে আর ঢুকতে দেবে না। এখান থেকে ওই মানুষের কাছে একটা মেসেজ যাওয়া উচিত যে আমাদের কি করা উচিত। যদি রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর মঠকে কেউ ফলো করে তাহলে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ভণ্ডামির কোনো জায়গা নেই ওখানে, ওরা কিন্তু ক্লিয়ার, ওরা সাইন্স নিয়েই চলে। ঠাকুরকে যেমন পুজো করে তেমনি সাইন্স নিয়েই চলে। এক মিনিট, রাজেশ ফোন করছে। রাজেশ জয়েন করো না ভাই। हेलो, ओ अच्छा अच्छा, कोई आप फीड कीजिए ना, লগইন। হ্যাঁ, তো এখন এখন যে কথাটা সুবীর বললেন, বা আমরা তমালদার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখেছি, যে কোনো টাকা পয়সা দিয়ে কিন্তু লাইফ সেভ করা যাবে না। আমাদের সহযোগিতা, কারণ সেই সময় যে টাইমটা পাওয়া যায় 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, সেই সময় যদি আমরা তাকে চিকিৎসার বা সেই জায়গায় ব্যবস্থা না করতে পারি, কিচ্ছু হবে না। মৃত্যু ছাড়া তার কোনো রাস্তা নেই। মানে কতদিনে তমালদাকে সকাল 6:30 থেকে 1:45 পর্যন্ত শুধু হন্যে হয়ে বেড়াতে হয়েছে।
থ্যাঙ্কস টু আমাদের সুরজিৎ যে আজকে এত বড় একটা কাজ করেছে। এটা এটা যদি এটা গভর্নমেন্ট লেভেলে হতো তাহলে তাকে অনেক কিছু অ্যাওয়ার্ড দিত। আমাদের পাবলিক কেউ কাউকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার নেই। আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি, একে অপরকে স্নেহ করতে পারি বা করতে পারি। কিন্তু আমাদের সুরজিৎ এবং সুব্রত সেদিনকে যদি তমালদার জন্য ওইভাবে সাপোর্টটা না দিত, আজকে হয়তো তমালদাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম না বা ফিরে পেতাম না। একদম ক্লিয়ার কথা বলছি, এতে কোনো রকম কোনো দুমত নেই। এটা প্র্যাকটিক্যালি সুরজিৎ যা করেছে বা সুব্রত, এবং তারপরে শান্তনু মজুমদার যে কাজটা করেছে, একমাত্র দেখলাম আমাদের আইএফএ দের জন্য, একমাত্র আইএফএ ছাড়া আর পৃথিবীতে কেউ নেই তাদেরকে দেখবার জন্য। কোনো টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি কোনো কিছু কোনো কাজে আসবে না যদি আমরা বন্ধুত্বটা এখন না বাড়াতে পারি। একটাই, কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করার দরকার নেই, টাকা জোগাড় হয়ে যাবে, কিন্তু মেন সহযোগিতা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একে অপরকে সহযোগিতা করা। মেডিক্লেম পলিসি আমরা করব, সেগুলোর তার সাপোর্ট দেবো, সবকিছু আছে। তার আগে বেশি দরকার হচ্ছে আমাদের এমন একটা গ্রুপ তৈরি করা যাতে আমরা একে অপরকে হৃদয়তার সাথে আমরা তাকে হেল্প করি, অ্যাবাভ দ্য সার্ভিস যেটা বলা হয়, এবং নিজেকে বেঁচে থাকার জন্য। এরম নয়, কারণ সব সময় জানতে হবে যে যে যখন যার ঘটছে ওই ঘটনাটা যে কোনো মুহূর্তে আমারও পরিবারের কারো ঘটতে পারে। তার জন্য আমি কতটা প্রস্তুত, আমাকে কে সাহায্য করবে, এটা চোখ বন্ধ করে যদি আমরা সবাই ভাবি যে আমার পরিবারে একটা এরকম একটা ক্রাইসিস এসছে, আমি কাকে কাকে এখন ফোন করব, কাকে ফোন করলে আমার এই সমস্যার সমাধান হবে। আপনারা নামের লিস্ট করুন একটা, করে নিয়ে তাকে জাস্ট একটা ট্রায়াল হিসেবে কয়েকটা লোককে ফোন করে একটু দেখতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার সত্যি কথা যখন প্র্যাকটিক্যালি ক্রাইসিসে পড়বেন তারা কতটা হেল্প পাবেন। কারণ আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে কনসেপ্ট, আমাদের প্রত্যেকের বড় বড় ইনভেস্টর আছে, তারা অনেক বড় বড় হস্তি, মনে করি আমরা যে আমাদের ইনভেস্টর আমাদের বাঁচিয়ে দেবে, একদম না। যখনই ইনভেস্টর এরম বুঝবে সে বলবে, সে ফোনই ধরবে না, এত দূর বলে দিলাম। সেই জন্য যদি আমরা কোনো আইএফএরা যদি ভেবে থাকি যে আমার বড় বড় ইনভেস্টর আছে, আমার 1 কোটি টাকার মেডিক্লেম আছে, আমার অনেক টাকা আছে, আমি বেঁচে যাব, একদম ভাববার কোনো জায়গা নেই। তাহলে পরে আজকে সেনকো জুয়েলার্সের মালিকও মরতো না, ব্যাঙ্গালোরে যার নিজস্ব বড় হসপিটাল তার সে নিজেও মরতো না। ওইসব ভাবনার কোনো জায়গাই নেই। তাহলে মন্ত্রীটা মরতো না, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীও মরতো না, নেতা মন্ত্রী প্রফেসর, কলকাতার বুকে ব্যাংকের লোক, সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রফেসর, হাওড়ার এত ইয়াং ডাক্তাররা মারা যাচ্ছে। তো এখন এই জন্য যেটা মূল দরকার হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য বন্ধন হওয়া খুব দরকার, যাতে আমরা একে অপরকে হেল্পটা করতে পারি। তো এখানে আমি একটু শান্তনু মজুমদারকে বলবো, শান্তনু মজুমদার তো এখানে আছে, শান্তনু মুখার্জি আছে। শান্তনু মুখার্জি, তোমার যদি একটু ভিউজ বলো, কারণ এই ভিউজ গুলো সবার জানা দরকার। মেডিক্লেমের পলিসি কোনটা কত সেগুলো তো টেকনিক্যালি পরে করাই যাবে, কিন্তু আমরা যেটা চাইছি শুধু মেডিক্লেম পলিসিটাই তো শেষ কথা নয়। শান্তনু, শান্তনু শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, কি বলবো, যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই যে ক্রাইসিসটা হয়েছে তাতে আমাদের কি করা উচিত অ্যাকচুয়ালি। আর মেডিক্লেম এগুলো তো পলিসি যেগুলো হবার সেগুলো তো টেকনিক্যালি যেটা হবে সেটা হবে। না, আমাদের ফার্স্ট আর কি ইউনাইটেড হতে হবে। আমাদের আইকার মেম্বাররা যদি ইউনাইটেড না হতে পারে তাহলে তো মুশকিল। মানে আমরা একদিক দিয়ে ভাগ্যবান, আমরা ডানকুনিতে যতজন আছি আর কি, আমাদের মধ্যে কিন্তু মানে বন্ধু বলতে আমাদের আইএফএরাই আমাদের বন্ধু, এবং একজনের বিপদে এক একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি যখন অসুস্থ হয়েছিলাম, এই সুব্রত সরকার, অপু, সিদ্ধার্থ, রাজু এরা একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে এ টু জেড করেছে, মানে টোটাল, মানে শুধু ট্রিটমেন্টের ব্যাপার নয়, মানে সমস্ত কিছু। তো এইটা যদি আমরা একটু বৃহৎ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে এটা আমাদের প্রত্যেকেরই মঙ্গল। মানে কি মেডিক্লেম হলো না হলো সেটা তো পরের ব্যাপার, কিন্তু এই যোগাযোগটা না থাকলে খুবই মুশকিল। রিসেন্টলি তমালদার লেসনটা আমরা ভীষণভাবে আর কি মানে শিক্ষা পেলাম আর কি। এইটা কে যাবে আজকে কারোর বিপদে, কে এগোবে? যদি আমাদের নিজের অর্গানাইজেশনই না এগোয় তাহলে কে এগোবে? তো আমাদের মধ্যে সেই বন্ডিংটা তৈরি করতে হবে।
হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে। নেক্সট আমি কাকে বলবো? দেবাশিস গোস্বামী। দেবাশিস গোস্বামী এমনি অন করে সবই নিন। শুনছি, সবই আমাদের এটা 3 দিন হলো মিটিংটা চলছে, এরকম 3 দিন, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে উপস্থিতির হার, যেটা গ্রুপ মেডিক্লেমের গ্রুপটাই ফর্ম করছে না, তো সেটা কি করে হবে? আমরা যদি নিজের ভালো নিজে না বুঝি বা নিজে না এগিয়ে না আসি, তাহলে এই ডিসকাশনের কোনো মূল্যই থাকবে না। আপনার যে সময়টা দিচ্ছেন, আপনি যে উদ্যোগটা নিয়েছেন আমাদের জন্য, সেইটার কোনো মূল্য থাকবে না। এইটাই। দেবাশিস দা, অত হতাশ হবার নেই। আজকে তো জানেন যে একটা এই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে ভূমি পূজা করলো, এই পদ্ধতিটা কয়েকশো বছর লেগেছিল। তো ওরকম ভাবার কিছু নেই, কোনো জিনিস সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু হয় না। একটা বড় জিনিস হতে একটু টাইম লাগে। আমরা সবাই ভালো, বিশেষ করে ভালো জিনিস হতে আর একটু সময় লাগে, আর বিস্ফোরণ ঘটতে বেশি সময় লাগে না। যেটা কালকে যেমন হয়েছিল, যে বিস্ফোরণটা হলো, সেখানে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিশাল পরিমাণে মজুদ ছিল, দিয়ে লেবাননে যেটা হলো। আজকে শুধু ডিফারেন্সটা হলো পরমাণু বোমার সঙ্গে এটার, যে ওটার তেজস্ক্রিয়তা থাকে, এটার তেজস্ক্রিয়তাটা নেই। নাহলে ক্ষতিটা মোরালেস কম হয়নি কালকে। তো কোনো কিছু খারাপ জিনিসটা হয়তো একদিনে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভালো জিনিস করতে টাইম লাগবে, একটু সময় লাগবে, ধৈর্য রাখতে হবে। এরম অধৈর্য, কারণ প্রথমত হচ্ছে যে আমরা যে কাজটা করছি, হ্যাঁ, হাল ছেড়ে দিলে হবে না, মোট কথা হাল ছাড়লে হবে না। হাল না। আর একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যে কাজটা করতে চলেছি, এটা একটা ফ্র্যাঙ্কলেস জব। মানে এখানে কারো কোনো রোজগার হবে না, তাকে সময় দিতে হবে নিজেদের স্বার্থে। এখানে আমরা যে ডিসকাস করছি, যা কিছু করছি, সেটার সঙ্গে সরাসরি ভাবে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কোনো রোজগারের কোনো গল্প নেই। এটা হচ্ছে প্রথম কথা জানতে হবে। এখানে যার জন্য কি হচ্ছে, আমরা বেশিরভাগ মানুষই সবসময়ের জন্য যে কোনো আলোচনা পছন্দ করি বা যা কিছু শুনতে পছন্দ করি, সেখানে দেখি আমার রোজগার কত আসবে, এটাই মূলত আমাদের নর্মাল। এটা আমি কাউকে ভালো বা খারাপ বলছি না, কিন্তু আমরা এখন যে আলোচনাটা করছি, যে আমরা একে অপরকে হেল্প করব, সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার পরিবারে তো কোনো সমস্যা নেই, আমি কেন অন্যকে হেল্প করতে যাব? আমার পরিবারে হলে তখন দেখে নেব। সেই জন্যই এটা একটু সময় লাগে। হ্যাঁ, তো এনিওয়ে ঠিক আছে, এটা কোনো এটা ভাবার কিছু নেই, আস্তে আস্তে। গৌতমদা, প্রাণটাই যদি না থাকে তাহলে রোজগারটা আর হবে কি করে? একদম একদম। কিন্তু সেই অনুভবটা সবাই আমরা বুঝলেও কি একটু সময় লাগে। আমার সবই সময় লাগুক, এটা তো থার্ড মিটিং, বন্ধ করে দাও, থার্ড মিটিং এ তাইলেই হবে। 28টা হয়েছিল, মানে 28 জনের উপস্থিতি ছিল, আস্তে আস্তে উপস্থিতির হার কমেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে এটা হতে হতে তারপরে দেখা গেল হয়তো কোভিডই চলে গেল। কোভিড তো চলে যাবেই, কারণ আপনার জন্য আমার জন্য ওয়েট করবে না। সেটাই। কোভিড এর পরবর্তী ক্ষেত্রেও তো আমাদের নিজেদের দরকার হতে পারে। আরে কোভিড বলে একদম একদম ঠিক। ওই ইংরেজি কথাটাই বলতে হবে, বিলেট দ্য লিভার। গৌতম দা, আমি আপনাকে একটা জাস্ট আমার একটা মতামত দিচ্ছি। আপনি যে কমিটিটা করেছেন, আমাদের হুগলির থেকে যে আপনি চারজনকে রেখেছেন, ঠিক আছে, মানে তাদের নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই। যদি 4 জনই থাকে, তাহলে আমার মনে হয় এটা যে পারপাসে কমিটি, তার মানে সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে তমালদা বদলে আপনি সুরজিৎকে রাখুন। আর যদি 5 জন করেন, তাহলে সুরজিৎকে অ্যাড করে দিলে ভালো হয়। সুরজিতের মতো ছেলে আমাদের কমিটিতে থাকা খুব দরকার, খুব দরকার। ঠিক, একদম ঠিক, আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এই মুহূর্তেই, সেটা অ্যাড করে নিচ্ছি। খুব ভালো প্রস্তাব দিয়েছে, এটা সত্যি কথাই, এটা খুব দরকার ছিল। তো সেটাকে ঠিক আছে, ফার্দার কিছু বিশ্বপ্রিয় সেনগুপ্ত আছে বোধহয় আমাদের ভদ্রেশ্বর থেকে। শরীর খারাপ, জানি ওনার তো শরীর খারাপ, আমি জানি। তো আমরা সরাসরি তাহলে পরে যিনি ম্যাডাম আছেন ব্রোকিং হাউস থেকে, আস্থা, ওনাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করি। আমরা আর সুরজিৎ বা এখানে যারা আপনারা মেডিক্লেমের সাথে যুক্ত আছেন, তারা সমস্ত কিছু প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করুন যে আমরা কি কি চাইছি এবং সেটা কিভাবে ওনারা সার্ভিস দিতে পারবে বা বেস্ট কোটেশন কি দিতে পারবে। তো আমি আস্থা আছেন কিনা? হ্যাঁ, ম্যাডাম, হ্যালো। जी जी जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, आई कैन हियर यू, बट सर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं इतनी बंगाली में फ्लुएंट नहीं हूँ, आप हिंदी में तो बताइए इज इट ओके विद एवरीबॉडी?
proceed with your version. डेफिनेटली, No थैंक problem. यू वेरी मच सर। सर मैं एक ब्रोकिंग फर्म से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास में सारी कंपनी से नेशनल टाई अप्स हैं। हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कंपनी से हम लोग कोटेशन लेंगे। सबसे पहले हमको अगर हमारा ग्रुप मेडिक्लेम करना है तो हमको सारी चीजें जॉट डाउन। हेलो जी मैडम, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए ना तो अच्छा लगेगा, थोड़ा वीडियो ऑन कर ओके लीजिए। सर। राजेश सारोगी, तुम सुनो बॉस। राजेश जी, राजेश देख सारोगी, रहा हाँ, आपका देख रहा, वो देख जो रहा। आपका हाँ, जो मॉडल है ना, इनका एक Sit बार down, no बोलिए। meeting. हाँ, Good. हम check आ, कर लेता, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सर हम लोगों को ग्रुप मेडिक्लेम के लिए सबसे पहले जॉट डाउन करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं किसका क्या एज ग्रुप है। उसके बाद हमको हमारे डिपेंडेंट्स को लेना है, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स जो भी है उनको इन्वॉल्व करना है, हमारा सम इंश्योर्ड कितना रहेगा। उसके बाद में हमारे जैसे आपको डे 1 से सारे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर करवानी है या नहीं करवानी है, ये सारी चीजों पे हमको एक एक बात करके फिर ही हम एक बहुत अच्छा कोट जिसका प्रीमियम भी ज्यादा नहीं होगा और जो कंपनी भी क्लेम सेटलमेंट में अच्छी रहेगी वैसा हम लोग आपके लिए फाइंड आउट करेंगे। आप लोग हमारे पास सारी कंपनीज है, इसीलिए हम लोग किसी को एक को प्रेफर नहीं करते। सब कंपनी की सर्विसेज अच्छी है क्योंकि हमारा खुद का क्लेम डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में और आपको सबको डायरेक्ट रीचेबल रहेंगे। अगर आप लोगों का किसी का भी क्लेम आता है आप लोग डायरेक्ट रीच कर सकते हैं क्लेम डिपार्टमेंट को। तो राजेश जी आप पूछिए, आपका जो है अच्छा। वो आप एक बार पूछ लीजिए राजेश जी। मैडम, ठीक है, मेरा मैडम एक क्वेश्चन है। जी सर बताइए। क्योंकि हमारे ग्रुप में काफी मेंबर है और सबकी फैमिलीज अलग अलग है, तो आप जो पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, आप सिंगल पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसी सबकी बनाने की बात कर रहे हैं ग्रुप? सर देखिए, इट कैन बी बोथ द थिंग्स। आप अगर ग्रुप में करवाते हैं तो प्रीमियम विल बी मेरे ख्याल से प्रीमियम थोड़ा सा कम पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल अपने अपनी फैमिलीज का करवाना पाएंगे तो उसमें एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि एक होता है कि टेक फॉर एग्जांपल 10 फैमिलीज है और सब में चार मेंबर है, तो उसमें 40 मेंबर्स का एक सिंगल पॉलिसी बना, ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन है कि 10 फैमिलीज का सबका पॉलिसीज अलग अलग बना, बट दे आर ऑल अंडर द ग्रुप मेन ग्रुप पॉलिसी। नहीं, वो सर एक्चुअली देयर इज वन कंपनी जो ऐसा करती है, बट आई गेस कि हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो उसमें वाला ये प्रॉब्लम, पहले वाले ऑप्शन में हम जाते हैं, सपोज जो 40 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से मेरे को सबसे प्रीमियम इंडिविजुअली कलेक्ट करना होगा। 10 फैमिलीज है तो 10 प्रीमियम कलेक्ट करना होगा। कोई वजह से नंबर 10 आदमी जो है अगर वो प्रीमियम नहीं देता है तो हमारे उसके चक्कर में बाकी 9 आदमी फंस जाते हैं। वो कोई भी वजह से बोलता है मैं प्रीमियम नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, या पॉलिसी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, व्हाटएवर बी द रीजन, तो बाकी 9 आदमी उसके चक्कर में फंस जाएंगे और पॉलिसी का जो ड्यू डेट है वो लैप्स हो जाएगा। कि इतनी जो हम लोग ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग काफी बड़ी ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं और हमेशा वो फिजिबल नहीं होगा टाइम पे पॉलिसी को रिन्यूअल करवाना। तो हम चाहते हैं कि जो आदमी पैसा दे रहे हैं, जिसका हाथ में चेक आ गया हम लोग उसी की पॉलिसी रिन्यू करेंगे, जिसका चेक नहीं है उसका रिन्यूअल नहीं हुआ। अच्छा, तो यू वांट कि वन ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप्स टू बी क्रिएटेड? करेक्ट। So that whichever group is paying the premium, केवल उन्हीं का पॉलिसी बना। जो ग्रुप प्रीमियम नहीं दे रहा है, आज जैसे भी वो अपने डिस्कशन कर रहे हैं, कितने आदमी ऐसे हैं जब पॉलिसी लेने की बात लेकिन जब बोलेंगे चेक देना है तो चेक नहीं दे रहे हैं। दे माइट हैव वेरियस रीजन, उनके पास ऑलरेडी पॉलिसी होगा इसलिए वो नहीं करने में इंटरेस्टेड है, या कोई टॉप अप लेने में इंटरेस्टेड है, कोई का क्या रीजन है, कोई का क्या रीजन है।
तो अपने वो सब नहीं जानते हैं और अननेसेसरी अपने फंस जाएंगे आगे जाके। मैं चाहता हूँ कि काम ऐसा करें ताकि वो रेगुलरली ईयर ऑन ईयर प्रीमियम पेमेंट आपको होता रहे। इट शुड नॉट हैपन कि एक साल पेमेंट हो और नेक्स्ट ईयर का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज अपने जो करने जा रहे हैं ये काफी इटसेल्फ में बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, और करके केवल एक ही साल ऋण पॉलिसी बनाना तो कोई मतलब नहीं हो एक्सरसाइज करके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कंटिन्यूटी तभी मेंटेन होगी जब मैं सबका प्रीमियम, जिसका जिसका प्रीमियम आया उसका अपने चेक जमा दे दिया, और सबको हम लोग बोल रहे हैं कि भैया जो चेक देना है इस नाम से चेक बनेगा, ये अकाउंट में दे दीजिए और इस कंसर्न पर्सन को आप इंटीमेट कर दीजिए। हर बार हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं पॉलिसी के चक्कर में, नहीं तो जो भी ये बंदा चेक कलेक्शन करेगा उसका एक हेडेक होगा, भैया हमने तो आपको एक दिन महीना पहले चेक दे दिया था, उसने नहीं दिया तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, आपने हमारा क्यों नहीं रिन्यू किया, हमारे अभी क्लेम हो गया, हमको आपसे पैसा चाहिए। सर देखिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस में द चेक इज वन एंड द मेंबर्स आर मेनी। करेक्ट। अगर हम फैमिली इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज टू बी डन पर फैमिली वाइज। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंश्योरेंस देखेंगे तो जी हर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंश्योरेंस सेपरेट बनी हुई है, लेकिन सबकी ग्रुप के अंदर में बनी हुई है। सर, मैं वही बोल रही हूँ, क्या होता है सर, मैं भी एक कंपनी को बिलोंग करती हूँ और एक कंपनी में हमको भी ग्रुप इंश्योरेंस देते हैं और हमारे सबके नाम की इंडिविजुअल पॉलिसीज बनती हैं, और उसमें जो बंदा प्रीमियम नहीं पे करता है उसकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। करेक्ट। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को चेक कितना जाता है? सर कंपनी एक चेक एक जाता है सर। नहीं, एक बट चेक जाने वो में तो सर हम लोग हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल इंश्योरेंस में है या हमारा रिलायंस में है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग उनको इंटीमेट करते, जब रिन्यूअल का टाइम आता है, जब हम उतने लोगों को उस लिस्ट में से हटा के उन बाकी लोगों का इंश्योरेंस करवाते हैं। अच्छा, बाकी आदमी लोग 10 दिन बाद आना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? सर बाकी सर देखिए, रिन्यूअल जो होता है, रिन्यूअल की डेट होती है। करेक्ट। आप अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप फॉर एग्जाम्पल देयर इज समबडी हुज आपने बच्चों को भी ऐड करा हुआ है, तो नेक्स्ट रिन्यूअल तक देयर इज सम एडिशन इन द फैमिली, अगर वो चाहता है कि उसको भी ऐड करना चाहे तो इट विल बी एडेड एट द रिन्यूअल टाइम। वो मैं समझ गया ऐड करने की बात, लेकिन कितने आदमी जब अपनी एक बहुत बड़ी ग्रुप ले रहे हैं, there will be always a cases where somebody will not be paying the premium on time. 2-4 आदमी ऐसे होंगे जो प्रीमियम टाइम में नहीं देंगे और 2-4 के चक्कर में सारा पॉलिसी गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है, ये तो इंडिविजुअल्स मतलब इम्पोर्टेंस रहेगी कि अगर वो लोग नहीं पे कर रहे प्रीमियम, आप लोगों फॉर एग्जांपल आपका 15 तारीख का ड्यू डेट है, अगर 10 तारीख तक आपके पास पैसा नहीं आता है, देन दे विल नॉट बी इन नो मोर इन द ग्रुप। हेलो ओके, और तो वही पैसा अगर लोग 18 तारीख को आ जाता तब क्या करें फिर हम? सर देखिए, जब तक तो पॉलिसी हो जाएगा ना, आप दूसरों के लिए जब जो लमसम लॉट है। हेलो हेलो मैडम, यूर या अनम्यूट राइट। हेलो, हाँ सर बताइए। मैडम आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, आपकी सर वॉइस नहीं आ मैं ये बोल रही हूँ कि सर फॉर एग्जाम्पल इन माई कंपनी, इफ पर्सन इज नॉट पेड, उसको 1 महीने तक का वो मिलता है हम लोगों को ग्रेस पीरियड। करेक्ट। उस ग्रेस पीरियड में अगर हम पे कर देते हैं, देन वी विल बी काउंटेड इन अ ग्रुप, और हम लोग उस ग्रुप से आउट हो जाते हैं। करेक्ट। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा पॉइंट है कि हम जो 10 आदमी 10 फैमिली जो इंश्योर करने जा रहे हैं, 9 फैमिली ने मेरे को पैसा दे दिया है, लेकिन एक पर्टिकुलर फैमिली ने पैसा नहीं दिया, दे रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन देते देते वो लास्ट डेट आ जाता है। ठीक है, कारण जो भी हम लोग ऑफिस बियरर काम करेंगे, कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, इसने अगर चेक देना भूल गया और मैं कोई वजह से मैं भी भूल गया और आपको टाइमली नहीं चेक दिया, तो बाकी 9 आदमी और परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, ग्रेस पीरियड रहता है इसमें,
अगर हम बात मानता हूँ मैं, ग्रेस पीरियड है, कारण जो भी हम लोग सारी बात कर रहे हैं सारे ही ऑलरेडी इंश्योरेंस के फील्ड में भी काम करने वाले आदमी हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल सबको मैं मालूम बिल्कुल है, जानती हूँ सर। तो सब कोई को मालूम है ग्रेस पीरियड है, तो कितने बंदे ऐसे होंगे कि ग्रेस पीरियड के 2 दिन पहले ही देना पसंद करेंगे, मतलब राजेश तो sir, can I जानती है ask you a कितने लोग question? की आदत होती है, Hello, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि एक आदमी के चक्कर में 9 आदमी लैप्स हो सर जाए। देखिए, अगर हमने व्हाट वी विल डू, हम लोग जब ग्रुप मेडिक्लेम की बात करेंगे, हम लोग उसमें कुछ क्लॉज डलवा सकते हैं, बिकॉज ये हमारा Madam, कस्टमाइज madam, बनेगा। hello, madam, Correct. excuse me, Yes, sir. hello, madam, hello, आज madam. आज I want to ask you one question, Rajesh sir. I'm extremely हाँ sorry बोलिए बोलिए मैं बोलिए बोलिए, interrupt कर रहा हाँ हूँ. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, मुझे जो व्हाट आई थिंक राइट नाउ कि आप जब ग्रुप इंश्योरेंस होगा तब तो ग्रुप से तो आपके मैडम माने इंश्योरेंस कंपनी को पास तो चेक जाएगा, वो तो इंडिविजुअल तो शायद चेक नहीं जाएगा। नहीं, इंडिविजुअल का भी ऑप्शन होता है। क्या इंडिविजुअल का ऑप्शन होगा मैडम या ग्रुप में? हाँ होता है होता है होता है। सर देखिए क्या है कि मैं आपको वही बोल रही हूँ कि वी विल मेक आवर प्लान एज कस्टमाइज्ड प्लान। ओके ओके, हम लोगों को पहले हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, एग्जांपल में हाँ सर बताइए। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स की इंश्योरेंस होती है। जी जिस मेंबर को भी इंश्योरेंस जब भी कराना की इच्छा है उस समय वो अपनी पॉलिसी बना सकता है। और प्रपोजल फॉर्म आप फिल अप कर दीजिए। पहला प्रपोजल फॉर्म उनकी हेड ऑफिस जाएगा, उनकी जो भी कंसर्न ऑफिस कंट्रोलिंग ऑफिस वहां जाता है। तो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 जनवरी को ज्वाइन करता हूँ, कोई आदमी बोलता है मैं 1 फरवरी को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जब जब होती है पेपर वहां पहुंच जाता है। दे सर्टिफाई वेदर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट। वेरिफिकेशन के बाद पहली पॉलिसी वहां से इश्यू होती है। बाद में जो रिन्यूअल का है जो हेडेक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई हेडेक नहीं लेता है। आप अपना डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में पैसा दीजिए, रिन्यूअल कराते रहिए। एज लॉन्ग एज योर अकाउंटिंग कोड आपको डिस्काउंट मिलेगा। द मोमेंट यू आर आउट आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सर नंबर 1 वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों का यही हमारी तो कंपनी में भी होता है। बोलिए बोलिए, कैरी ऑन सर। नहीं आप इसमें पॉइंट है, इसमें मेरा पॉइंट है कि इसमें अगर 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 10 बार चेक जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी में। एक का पॉलिसी 1 जनवरी को रिन्यूअल हो रहा है, दूसरा का पॉलिसी 1 फरवरी को रिन्यूअल हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक मेडिक्लेम पॉलिसी निकाल रखा है जो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है। अगर मैं उसके थ्रू पॉलिसी कराता हूँ तो काफी लो प्रीमियम में मेरी पॉलिसी बन रही है। एंड उनका भी वही कंसेप्ट है कि आप जब भी मेरे को पैसा देंगे मैं आपकी पॉलिसी तब से चालू करूंगा। तो एक आदमी 1 जनवरी से चालू हो रहा है, दूसरा आदमी 15 जनवरी से चालू हो रहा है। और प्रीमियम देना नहीं देना इट इज प्योरली ऑन दैट पर्सन। पंजाब नेशनल बैंक नेक्स्ट टाइम वो कभी बोलना नहीं चाहता है कि आपको रिन्यूअल कराना है कि नहीं। आपकी इंटरेस्ट से तो कराइए, नहीं इंटरेस्ट से तो मत कराइए। ठीक है। नंबर 3 कंपनी है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है जो आदमी जैन है, इफ दे कैन ब्रिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर कम्युनिटी हेड तो हम लोग आपकी इंश्योरेंस कर देंगे। एंड जैन इंटरनेशनल, क्योंकि जैन काफी बड़ा ग्रुप है तो उन्होंने एक कंसेप्ट बना रखा है कि हम आपको एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम दे रहे हैं, 2 का नाम दे रहे हैं, आपको जिसमें पॉलिसी कराना आप कराइए। पहला प्रपोजल फॉर्म आपको भर्ती करके मेरे को देना होगा। आप हम लोग सर्टिफाई कर देंगे कि आप जैन है या जो भी है, उसके बाद आप अपना काम करते रहिए। तो जो मैनेजिंग कमेटी और रिन्यूअल में कोई पे भी पिक्चर में नहीं आती है, क्लेम में कोई भी पिक्चर में नहीं आता है। वो क्लेम में जिसको भी बात करनी है वो क्लेम का नंबर दिया हुआ रहता है, कारण कोई भी आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है क्लेम के लिए बात करने के लिए। इंश्योरेंस के ऑफिस वाले ही आदमी कॉम्पिटेंट है। तो फालतू में बीच में कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व होता तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो वो एक रीजन है। तो उसी हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी प्लान इसी हिसाब से रहे, ताकि एक बार हम लोग इनिशिएट कर दिए और उसको उसमें ऐड होना धीरे धीरे अपना ऐड होता चला गया। ठीक है और हमारी इंटेंशन क्या है कि सर, सेकेंड ईयर में एकदम खत्म हो जाती है। Sir, we will plan in this particular manner only
वी विल प्लान इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली, द कंपनीज विल, जो हमको देंगी हम उन्हीं को चूज करेंगे, ठीक है। इसमें इट इज ऑब्वियसली विल बी गुड फॉर एवरीबडी, और I also belong to जैन ग्रुप and I know about this thing जो आपने मुझे बोला है, and similarly it depends on all the bank employees as well. उन लोगों का भी यही रहता है कि उन लोगों का भी डिफरेंट पॉलिसीज रहती है सबकी, एंड सबका अपना अपना रिन्यूअल रहता है, आइदर वो सैलरीज से जाता है और एल्स आप अपना पे कर दो। इसमें सम इंश्योर्ड का भी डिफरेंसेस होते हैं, इसमें कई जगह सम इंश्योर्ड के भी डिफरेंस होते हैं, किसी को ज्यादा सम इंश्योर्ड रहता है, किसी के पास दूसरी पॉलिसी है, बट टू बी इन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप वो कम लेता है, वो भी हो सकता है। तो जैसा भी आपका जो भी डिसीजन रहता है, मतलब कॉमन उस पे वी कैन वर्क इट ऑन। जी सर बताइए। हेलो जी सर बताइए। हाँ बोलिए। आप जो बोल रहे थे सुनाई नहीं दिया लास्ट एक आधा मिनट का। अभी आया सर? अभी कैन यू हियर मी? हेलो सर? अरे हेलो, बोलिए। सर बोल रही हूँ कि हम लोग कंपनी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे हम मूव ऑन कर सकते हैं, और हम इसमें क्या क्या एड ऑन चीजें कर सकते हैं जिससे इंडिविजुअली किसी को तकलीफ नहीं हो, और कौन हमको बेटर अपना प्रीमियम दे सकता है। वंस वी आर रेडी विथ आवर चार्ट, सबका डेट ऑफ बर्थ, सबकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और सबका सम इंश्योर्ड के साथ हम रेडी होंगे, उसके बाद आई विल अप्रोच टू मेनी कंपनीज और मैं आपको उस हिसाब से कोट ला के देती हूँ। ठीक है, इसमें अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर हम किसी को बोलते हैं करने के लिए आप इंटरेस्टेड है क्या, सब कोई यस कर देते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर प्रीमियम कितना होगा। सर देखिए प्रीमियम तो जब भी पता चलेगा व्हेन वी विल ऑफर। नहीं मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिसका भी डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ वो मेरे से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, तो सर एटलीस्ट वी शुड टेक अ टारगेट जो नॉर्मल। तो मैं आपको टारगेट का एक फिगर दे सकता हूँ कि विल बी इंश्योरिंग अराउंड से 400 पीपल टू स्टार्ट विथ, ठीक है। सर 400 पीपल के 400, अगर आपका कुछ भी चार्ट रेडी है, अगर इफ यू हैव एनी ऑफ द चार्ट प्रिपेयर्ड विथ यू, प्लीज शेयर इट विथ मी सो दैट वी विल गेट सम अप्रॉक्स फिगर, सो दैट वी कैन, हमारे पास कोई फिगर होगा और एड ऑन करने को लोगों को। हो सकता है इट विल बी अ वेरी मिनिमम प्रीमियम, हो सकता है इट इज वेरी मिनिमम प्रीमियम विच वी विल बी ऑफरिंग। तो अगर आपका कोई भी डेटा रेडी है आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं उसमें वर्क ऑन करती हूँ। लेट अस कीप अ टारगेट ऑफ अराउंड अ वीक कि हमको उस वीक में हमारा प्रीमियम चाहिए। उन 400 लोगों को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि इतना प्रीमियम आ रहा है। फिर हो सकता है कि आपका ये प्रीमियम देखकर देयर विल बी मैनी मोर हु विल लाइक टू बी एडेड। वो तो हो ही जाएगा। मीटिंग चल रहा है। हेलो यस सर। हेलो वो तो हो जाएगा, कारण तो आपको जस्ट हम आपको एक जो भी छोटा सा जो कलेक्शन हमने किया है डाटा का। जी हेलो जी सर मैं सुन रही हूँ। छोटा डाटा का कलेक्शन किया है वो हम लोग आपको दे देंगे, लेकिन वो मिनिमम में ही है, कारण डाटा और आएगा। क्योंकि अभी हमने जो हमने डिसाइड किया अपनी मीटिंग के अंदर में, खाली म्यूचुअल फंड वाले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेंगे, जो आदमी फिक्स डिपॉजिट सेल करते हैं हम लोग उनको भी लाना चाहेंगे इस फ्रेमवर्क के अंडर में, जो आदमी इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं उनको भी लाना चाहेंगे। तो इस टाइप से अगर आदमी बढ़ते चले जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द आदमी लोग जो एजेंट्स लोग हैं मोस्ट ऑफ देम क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट का, और अगर उनकी अगर इंश्योरेंस बन जाती है विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओनली, और एज ए हम लोग का कमिटी मेंबर का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है,
तो हम लोग को काम करना बहुत आसान हो जाएगा। सर और हम लोग बिल्कुल, फिर यू नेक्स्ट टाइम स्टार्ट। क्या है कि नहीं तो राजेश जी, मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप लोग आप स्टार्ट करिए। आपका जब, जैसे हम्म, आपने बोला कि सीए इंस्टीट्यूट में या जैन इंटरनेशनल में वो लोग क्या करते, जैसे हम्म, जैसे ऐड होते जाते लोग, वैसे वैसे उसी पॉलिसी में नए लोग ऐड होते जाते हैं। तो हम्म, आप उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यस बोल चुके हैं, उन लोगों को लेट मत करिए, बिकॉज इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशंस गोइंग इन वेस्ट बंगाल ड्यू सही टू बात है। कोविड, ड्यू टू ऑल दिस। तो आप अगर हम्म, और डेटा कलेक्ट करेंगे, आप एटलीस्ट यू शुड हैव अ फैंसी थिंग दिखाने के लिए दूसरे लोगों को कि सी वी ऑल हैव हम्म, गॉट इंश्योर्ड बाय दिस प्रीमियम, एंड हम्म, इफ यू वांट वी कैन ऐड यू एज वेल। नहीं वही चाहते हैं, हाँ लेकिन हमारा खाली ऑपरेशनल पार्ट में हमारा कंसर्न है कि हम इस टाइप का पॉलिसी बनवाना चाह रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर से मेरा हेडेक नहीं होना चाहिए प्रीमियम कलेक्शन का, सर, बिल्कुल हो और एक जाएगा, बंदे के बिकॉज चक्कर में बाकी आदमी का लेफ्ट नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज आप ये सोचिए, एक नया एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में ज्वाइन करता है, तो हम्म, एम्प्लॉय जिस दिन ज्वाइन करता है उसका जीएमसी उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। नहीं एम्प्लॉय में और हमारे में क्या फर्क है, एम्प्लॉय की सैलरी कंपनी देती है तो कंपनी डिडक्ट करके पेमेंट कर देती है। हमारे केस में हम लोग कोई ना तो पैसा ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम नहीं लोग सर, को एनुअल हमारे, फीस भी वेरी मिनिमम है। नहीं सर, हम लोगों की कंपनी तो में एनुअल क्या फीस होता भी है कि हम लोग खुद मिनिमम है। पे करते हैं। हम्म, हम्म, हम नहीं लोगों ने आपका ऑप्ट करा डिडक्शन हुआ होता है। है पहले, आपने ऑफ सर, करा हो तो कंपनी को तो पर्टिकुलर डेट पे डिडक्शन कर देती है ना। सर कंपनी हमारे यहाँ तो हमारे को, डिडक्शन करने का स्कोप ही नहीं है। जी बोलिए। नहीं, हम मैं लोग को कह रहा क्या, था कि आपके कंपनी, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए सर, मैं आपको फिर बाद में बताइए। मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के केस में क्या होता है, एम्प्लॉयज का डिडक्शन हो जाता है, वेदर वो एम्प्लॉय चाहिए नहीं चाहिए, कंपनी फोर्सफुली उसका डिडक्शन कर लेती है। कंपनी हम्म, के पास पैसा 10 ही तारीख को आ जाता है, वेदर प्रीमियम ड्यू डेट 25 तारीख को या 26 तारीख को जब भी होता होगा। ठीक है, नाउ हम्म, कमिंग टू आवर केस, हम लोग के पास डिडक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कारण किसी का भी पैसा हमारे पास नहीं है। हम लोग जो हम्म, एनुअल फीस ले रहे हैं वो बेर मिनिमम अमाउंट होता है, हम्म, तो वो उससे हम लोग आपका प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं है कि भैया आपका डिडक्शन होगा तो हम अपने आप पेमेंट कर देंगे आपसे, हम बाद में आपका पैसा पड़ा तो कोई टेंशन की बात नहीं है हमारे पास। तो ये इसलिए हम वो चाह रहे हैं कि भैया पैसा वो दे और डायरेक्ट उसका पॉलिसी बन जाए। कोई आदमी लेट पेमेंट अगर बीच में पॉलिसी ब्रेक इन होता तो उसका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। फॉर दैट वन पर्सन और 2% द इंटायर ग्रुप शुड नॉट सफर। कारण जैसे जैसे अपने बड़े बनेंगे, आज अपने 100 फैमिली की बात कर रहे हैं, कल 200 फैमिली होगी, परसों 300 होगी, तो ये इस टाइप के 10-15 बंदे हमेशा रहेंगे और जी सर, 10-15 बंदे के चक्कर में सारी पॉलिसी गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट है, हमको 10-15 बंदे को आज ही पहला दिन में हम ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज नन ऑफ द ऑफिस, किसी भी ऑफिस बियरर को एक हेडेक नहीं देना चाहते हैं कि आपको प्रीमियम कलेक्शन का एक टास्क है। हम चाह रहे हैं कि भैया हम खाली एक नॉर्मल इंटीमेशन दे देंगे और जिसको प्रीमियम जमा देना है डायरेक्टली ऑफिस में जाके जमा दे दो, नहीं देता तो उसकी प्रॉब्लम है। गॉट इट सर, ठीक है सर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला पे काम चाहते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा काम बहुत आसान हल्का हो जाएगा। एवरी ईयर हमको एक ही पॉइंट, जब भी कमेटी की मीटिंग होगी तो इस पॉइंट पे ज्यादा डिस्कशन फिर नहीं हो सकता है। डेफिनेटली किसी ने सर। बोला किसी ने बोला हमने प्रीमियम नहीं दिया, बोला तुम्हारी प्रॉब्लम है नहीं दिया तो। हमने पॉलिसी जी बना रखी है, इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग इट इज योर चॉइस। आपने प्रीमियम टाइमली नहीं दिया तो कवरेज भी नहीं मिलेगा। जी हमारे सर, पास आने से कुछ होने वाला नहीं है कि हम बिना प्रीमियम के आपको कवरेज प्रोवाइड कर दे। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जो बन रहा है उसकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद रेस्पॉन्सिबल रहे। फिर भी नहीं डेफिनेटली होना चाहता तो आप और कुछ सर, कर मैं नहीं वही पाएंगे। आपको बोल रही हूँ कि यू आर नॉट टॉकिंग टू एनी इलिटरेट पर्सन, सारे पर्सन फील्ड के आदमी हैं, उन सबको हम्म, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीमियम पता है, हम्म, उन सबको पता है कि व्हाट द बेस्ट वी आर ऑफरिंग देम। ओके, हम्म, उसके बाद भी इफ दे आर नॉट डूइंग,
तो हम हमारे पास जो चंक ऑफ पीपल है, गिव अनदर 10 days. आप 10 days में या 12 days में you collect the maximum data you can and start once the premium, let's start the working of them after 10 days. और उसके बाद एक लॉट का हम इंश्योरेंस चालू करते हैं। लेकिन And- एक लॉट वाला जो कंडीशन है, मैं वही कंडीशन में वो करूंगा मैं कि समझ गई सर, आई हैव गॉट योर पॉइंट एंड वी विल वर्क ऑन दैट ओनली। वो अगर वो कंडीशन हुई देन ओनली आई विल ऑफर यू। हाँ, वो कंडीशन मेरा प्राइमरी कंडीशन है। जी। और जो आपकी डाटा जो चाहिए, जितना हम लोग डाटा कलेक्शन किए हैं, जैसा भी कलेक्शन किए हैं, हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे टू स्टार्ट विथ। और क्या प्रीमियम आता है, एक टेंटेटिव प्रीमियम अपने को समझ में आता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स ऑफ द पॉलिसीज, तो दो तीन जो मेजर पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि प्रीमियम हमारा कम हो। प्रीमियम कम करने के लिए दो चार स्पेसिफिक है। तो जो क्लॉजेज में आपको लग रहा है कि ये क्लॉज देने से प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, तो अपने वो सब क्लॉज हटा देंगे। टेक फॉर एग्जांपल, आपका प्रेगनेंसी वाला क्लॉज है, उससे उसके वजह से प्रीमियम ज्यादा होता है, तो अपने वो हटा देंगे क्लॉज। या वेटिंग पीरियड है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम डे, अपने कह देंगे भैया वेटिंग पीरियड 1 साल के बाद होगा। तो उसमें थोड़ा सा अपना प्रीमियम का कोई फर्क, कितना डिफरेंस आता है वो आप वर्कआउट कर लो कि अपने को 1 साल का अगर वेटिंग देते हैं तो इतना प्रीमियम रहता है, और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें ये डिफरेंस आ रहा है। तो इट इज वर्थ गिविंग एन वेटिंग पीरियड। कारण हम नॉर्मल पॉलिसी लेने जाएंगे तो उसमें तुमको वेटिंग मिलती है। तो इसमें जी भी सर। अपने जहां जहां अपने को लगता है थोड़ा प्रीमियम कम हो सकता है, तो सब पॉइंट को जी अपने सर। थोड़ा कंसीडर कर लेंगे। जो प्री ठीक है। एग्जिस्टिंग डिजीज है, शुड वी कवर इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और शुड वी कवर इट फ्रॉम आफ्टर 1 year, वो पॉइंट आ गया। और जो पॉलिसीज क्योंकि अपने ग्रुप के बना रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स इंक्लूड होने चाहिए ऑन द बोथ साइड। दैट मीन्स इन लॉज भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको एज ए कंपनी आपको मेंबर ज्यादा मिल गए, और इधर जिनका कवरेज नहीं है उनका भी कवरेज हो गया है। तो अपने को नंबर ऑफ मेंबर्स है, थोड़ा सा ज्यादा मेंबर बढ़ जाएंगे अपने। तो ये मेरा व्यू है इसके बारे में। ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट। मैं जैसे भी होता है आई विल वर्क इट ऑन। और मैं देखती हूँ कौन सी कंपनीज में और कोई सॉल्यूशंस हैं इसके लिए, तो दैट हाँ, आल्सो आई definitely, विल कम बैक टू गौतम दास। ओके, परफेक्ट। ठीक है। अब बोलिए गौतम जी। हाँ, ये सुरजीत कुछ बोलेंगे? सुरजीत कहाँ है? और कोई यहीं पे बंदा काम करता है जो जयंत होता? कुछ क्वेरीज है, कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, मैडम उसका सलूशन देंगे। मिस्टर देवाशीष को कुछ बोलने का है? हाँ, उनको अनम्यूट कर दीजिए ना। सब तो अनम्यूट ही है, अनम्यूट है। मिस्टर देवाशीष बंदोपाध्याय, हाँ बोलिए, जो हाथ उठाया। जिसका जो ओपन फोरम है, जिसका जो क्वेरी है, सुबिन नंदी आप भी बोल सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो इसमें क्या है ना, वो बेस्ट सॉल्यूशन निकलेंगे। हम लोग को क्वेरी जितना देंगे उतना बेस्ट सॉल्यूशन लेंगे। देवाशीष दीर्घांगी है और सुब्रत बसु और जो जिसका जो मन में है अभी खुल के बात कीजिए, तो हम लोग सबके लिए अच्छा है। प्लीज सुरजीत कहाँ गया? First of all, हाँ hello, Devashish Banerjee here. हाँ First of all, group insurance में जो फैमिली मेंबर्स हो गए, उसका प्रीमियम कितना आएगा ग्रुप इंश्योरेंस में ऑल माने टोटली, ये जानना बहुत जरूरी है। सर इसमें मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अभी जो एक्सरसाइज हो रहा है एकदम बेसिक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज हो रहा है। अभी खाली अपने को डाटा देना है, पॉलिसी नहीं बन रहा है अपना। ठीक है, डाटा दे अगर देंगे। उनको डाटा दे देते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पास किस एज के मेंबर्स अवेलेबल है, वेदर यू आर हैविंग ए यंग एज मेंबर्स और ओल्ड एज मेंबर्स। तो उसके बाद में अपने को फिर प्रोडक्ट जब डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या फीचर डालना है, प्रीमियम लास्ट में निकलेगा। ओके ओके। ऑन स्टेज 1 में अपने को नंबर चाहिए
तो कितना मैक्सिमम नंबर होगा, जितना मैक्सिमम नंबर स्टेज 1 में देंगे प्रीमियम उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन होगा। ओके ओके ओके। तो राइट नाउ किसी को कुछ बनाना नहीं है पॉलिसी, ओनली Only- यू हैव टू ओनली एक्सप्रेस योर हम लोग इंटरेस्ट ओनली। ये राजेश जी, हाँ। हम लोग जो गूगल फॉर्म बनाया जिसमें डेटा देना है, और हाँ। आज फिर गूगल फॉर्म जो है सबको जितना मैक्सिमम है इसका डिस्ट्रीब्यूट करो और इसका गूगल फॉर्म भरो। हम लोग अगला 7 डेज में हम लोग कितना गूगल फॉर्म है उसका एक्सेस शीट करके हम मैडम को भेज देंगे पूरा और डेटा। गूगल फॉर्म हम सजेस्ट करेगा जो अपने बनाए हैं, हाँ। एक बार मैडम को दिखा दीजिए। कल अच्छा। ना मैडम को कुछ उसमें पॉइंट ऐड करना है, कारण आपका जो गूगल फॉर्म में था उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स का थोड़ा सा एक इश्यू आ रहा था। ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में अगर टिक कर देते हैं और एज का कॉलम डाल देते हैं, हाँ। जैसे हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, फादर, मदर, पेरेंट्स इन लॉज, मदर, फादर जो भी है, और एनी अदर मेंबर करके उसमें कुछ कॉलम डाल देते हैं, तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का मेंबर्स आ रहे हैं, उनकी क्या क्या एज है। और टू बी प्रिसाइज डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दे दे तो और अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद एनीबडी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर ए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज करके पैटर्न रहेगा, तो सबका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने आ गया। प्रीमियम का जो पॉइंट है दैट विल बी द लास्ट पॉइंट टू डिसाइड कि हम लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं, ये फ्यूचर्स रहेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू नीड टू पे दिस मच ऑफ प्रीमियम। तो बाद में अपने को मालूम पड़ेगा कि कौन आदमी कितना इंटरेस्टेड है और कितना नहीं है, वो चेक आने से बाद में मालूम पड़ेगा। राइट नाउ एक उनको जस्ट एक बेसिक डाटा चाहिए कि दीज आर द पीपल हु हैव कम टुगेदर टू गेट ए पॉलिसी। तो वो खाली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन है अभी राइट नाउ। प्रीमियम वाला क्वेश्चन बहुत लेट आएगा। अपने खाली इतना ही एश्योरेंस दे सकते हैं, प्रीमियम विल बी कंपैरेटिवली लेस देन द पॉलिसी दैट यू आर गेटिंग इन द मार्केट। मैम ये बात ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? राजेश जी, मैं शुबीर बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे एक चीज इसमें ऐड करना था कि पहले अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इंश्योरेंस माने हेल्थ इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस लेके बात कर रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं कि उसमें क्या क्या, व्हाट विल बी द डिडक्टेबल, व्हाट विल बी द वेटिंग पीरियड। तो मैडम जी के पास तो एक तो पॉलिसी का क्लॉज रहता है, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन द मेडिक्लेम और ग्रुप पॉलिसी। वो अगर हम लोगों को मिल जाता तो ग्रुप में हम लोग अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, बहुत सारा जन उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट दिखाएगा। अभी तो कुछ आंखों के सामने नहीं है, विजुअली हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। समझ गया। हाँ। समझ गया। तो मैम ऐसा कर सकती है, मैम के अपने मैम को ब्रॉडर गाइडलाइन दे दिए हैं कि दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंड जो मैम से एक बार बात करके मैम क्या क्या फ्यूचर उसमें इंक्लूड कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, करेक्ट, विद डिडक्टेबल एंड ऑल कैपिंग प्रोडक्ट बना देगी। हाँ, डिडक्टेबल के हिसाब से विदाउट डिस्क्लोजिंग द प्रीमियम पार्ट। करेक्ट। और जितना उसमें कंडीशन अपने डाल देंगे कि जो प्रीमियम होगा कि ही नीड्स 100% और मिनिमम 200%, जो भी उनका कंडीशन है। तो अपने जब उसको मार्केटिंग करेंगे कि अपने को भी नॉलेज रहेगा कि 200 आदमी के नीचे होगा तो पॉलिसी नहीं बनने वाला है। तो मैडम ये काम कर सकती है मेरे ख्याल से। मैडम से पूछ लीजिए सर, क्या कहती है, हो जाएगा ऐसा काम ये? सर मैं ये कहती हूँ कि जैसे आपने मुझे ये बताया अभी पहले कि अपन अपना प्रीमियम के हिसाब से अपन वेटिंग पीरियड 1 साल रख सकते हैं, या अपन मैटरनिटी कवर नहीं लेते हैं, तो वी शुड जॉट ऑल द पॉइंट्स एंड वी शुड प्रमोट इट एज अ की फैक्टर्स ऑफ द पॉलिसी। आप समझ रहे हैं? सुबीर जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि पीपल डजंट नो, सुबीर जी ने एकदम सही बात बोली है कि पीपल डजंट नो, इट इज ओनली अ ग्रुप मेडिक्लेम जो हम लोग या आप लोग बोल रहे हैं। ग्रुप मेडिक्लेम में व्हाट ऑल दे विल गेट। अगर आज आपने बोला कि इन लॉज एंड योर पेरेंट्स विल बी कवर्ड, दिस कैन बी द फर्स्ट पॉइंट, मतलब ऑल डिपेंडेंट्स विल बी कवर्ड। ओके, अब इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन कि उनको डिपेंडेंट ऐड करना है या उनको नहीं करना है। ओके, सेकेंड बात है मैटरनिटी कवर विल नॉट बी एडेड। चलिए आप पॉइंट्स बना के
हमको फाइनलाइज करना, मैटरनिटी कवर हम नहीं लेंगे, प्री एग्जिस्टिंग कवर जो क्रिटिकल है उसका हम 2 साल का वेटिंग पीरियड करेंगे। आप समझ रहे हैं? जो नॉर्मल है, जैसे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, आर्थराइटिस है, जो नॉर्मल डिजीज है जो 1 साल में क्योर हो जाती है, उसको हम 1 साल का वेटिंग पीरियड देंगे। आप समझ? तो ऐसे पॉइंट जो गाइडलाइंस हैं कि हम उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम इंश्योर्ड, हम आई डोंट नो आप लोगों ने क्या सोचा है, सम इंश्योर्ड कैन बी अ की फैक्टर, कि बंदा एक बार अपने सोच सकता है कि मेरे पास अगर ये मेडिक्लेम है तो ये हो जाएगा, तो एक एड ऑन हो जाएगा मेरे पास। क्योंकि आप अगर ये की फैक्टर्स बना के प्रमोशन करेंगे तो इट विल बी अट्रैक्टिव पॉलिसी फॉर ऑल योर कलीग्स। परफेक्ट, एकदम सही बात बोल रही है आप, एकदम सही। तो ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई है, तो आप इस पे जो थोड़ा बहुत वर्कआउट करके जो भी आपके पास पुरानी पॉलिसीज है उसमें आपको क्या क्या पॉइंट लगता है की फैक्टर अपने बना सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग फिर उससे आगे बढ़ेंगे उस पॉइंट पे। सर मैं क्या करती हूँ, आई विल शेयर विद गौतम दा या आपके साथ, जो हम लोग प्रीवियस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बना चुके हैं, हम उसमें से मतलब आम पब्लिक क्या ग्रुप इंश्योरेंस में लेती है, दैट आई विल शेयर विद यू द एड ऑन थिंग्स, बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। आप लोगों को भी पता होगा कि इसमें अगर ये और एड ऑन कर देंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। करेक्ट, आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती है सर, हॉस्पी कैश चीजें होती है, बहुत सारी एबीसीडी चीजें होती है जो कि हम ऐड भी कर सकते हैं और हम एकदम सिंपल भी बना सकते हैं। हम ऐड नहीं करके वनीला पॉलिसी एकदम सिंपल ग्रुप पॉलिसी बना भी सकते हैं, जिसमें किसी को कोई काइंड ऑफ कंफ्यूजन ही नहीं हो। हॉस्पिटल जाओगे क्लेम मिल जाएगा, हम उतना ही चाहते हैं, हॉस्पिटल कैश वाला कॉलम हम नहीं चाहते हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे पॉलिसीज को उतने लोग आपसे विल क्वेश्चन। आप सिंपल प्लेन पॉलिसी बनाइए, 5-6 एक्सक्लूजन रखिए, 5-6 इंक्लूजन रखिए, पॉलिसी खत्म। वो करना चाह रहे हैं, और आपको 2-4 कैटेगरी में हम लोग प्रीमियम सेट कर देंगे, इस कैटेगरी में प्रीमियम आ रहा है, दैट्स ऑल। जी सर। एक्सक्यूज मी राजेश जी, और एक चीज ऐड करना था। हाँ बोलिए। ये अभी मेरा दोस्त लोग ने कोरोना लिया है, कोरोना कवच का जो पॉलिसी लिया है। राइट। तो आज टुडे मॉर्निंग आई रिसीव्ड वन कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग, तो उसमें बोला जा रहा है कि नहीं ये इसका तो आपका तो वेटिंग पीरियड हो गया, लेकिन आपका प्री एग्जिस्टिंग कुछ था उसमें आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ऐसे कुछ हो रहा है। तो पीपीई में दिन में 5-6 तो पीपीई, तो ऑन एन एवरेज अगर 3-4 हजार करके एक पीपीई का कॉस्टिंग है तो 15,000 तो ठीक है। तो क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ कोविड कोरोना, वो भी हम लोग को चाहिए साथ पे डिटेल्स। कोविड वाला पार्ट, आपको कोविड वाला पार्ट तो इंक्लूड रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये सारे पीपी वाला पॉइंट है वो रहेगा। मैं इज टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, कि आपको प्री एग्जिस्टिंग वाली जो पॉइंट्स है उसमें अपने वेटिंग कितना डालने का है। मोस्ट ऑफ द पीपल, आपने जो क्वेश्चन बताया था, हमने आपका क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि द पर्सन वाज टेकन द पॉइंट एट दैट टाइम ही इज नॉट डिक्लेयर्ड हिज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो उसको अपने को जब भी किसी की पॉलिसी बनानी है अपने को ये पॉइंट डिक्लेयर करना होगा कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, और उसको डिक्लेयर बहुत अच्छा सा मेरे पास। हम जिसका भी पॉलिसी करते हैं हम क्लाइंट से एक डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं। In case you have failed to declare your pre-existing disease, don't try to remember it when you are going to the hospital. In case you remember, you will not get your claim. हमारा एक बहुत अच्छा सा वर्डिंग बनाया हुआ है, और वो क्लाइंट से हम पहले दिन ही साइन करवाते हैं। तो या तो क्लाइंट मेरे पास दोबारा आता नहीं है, अगर वो आता है तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को बता के आता है मेरे पास। And also sir, I want to add one thing. कि nowadays Mediclaim, every Mediclaim has started adding COVID policies as well. तो जिसका तो COVID will be by default will be in that policy,
एंड इट इज अ पार्ट ऑफ हाँ वो डिफॉल्ट हो तो उससे कोई बात डिफॉल्ट है वो, तो उसमें नहीं है। एंड कोरोना कवच हाँ, पॉलिसी सही बात इट है। इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। करेक्ट है, लेकिन कितने एजेंट वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, और जो क्लाइंट लोग हैं वो लोग न तो एजेंट क्लाइंट को पूछता है और न क्लाइंट एजेंट को बताते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, पॉलिसी बन जाती है, क्लेम के समय में सारा स्टोरी सामने आता है। तो मैं भी ये काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं क्लाइंट से एक डिक्लेरेशन साइन कराता हूँ, अपना डिक्लेरेशन है। अगर कोई कहता है मेरे कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों जन साइन कर दीजिए कोई भी बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो आप बता दीजिए, और बताना भूल गए हैं तो बाद में बताएंगे, तो जब बाद में बताएंगे तो क्लेम भी आपको कभी नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर बीमारी में तो क्लेम मिलेगा नहीं, बाद में कोई बीमारी होगी तो क्लेम मिलेगा। तो हमने इस हिसाब से हम जब समझा देते हैं तो क्लाइंट बेचारा सारा बीमारी बता देता है, और नहीं बताना चाहता है तो मेरे पास आता नहीं है फिर वो। तो तो सम अप करना पड़ेगा अभी। मैडम को आपको गूगल फॉर्म हम भेज दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए जो गूगल फॉर्म में क्या क्या चाहिए, इंक्लूड और एक्सक्लूड। हम गूगल फॉर्म जो बनाया, तो गूगल फॉर्म एक बार आप चेक कर लीजिए। तो मैं वो सब चेक पॉइंट अपना करके आपको कवर्ड अपडेट दे रहेगा। दूंगी। हाँ, तो उसके जो ऐड करना है ये है, और एक है अभी आप मत एक, हाँ तो और एक है कि मैडम आप गूगल एक, फॉर्म मत बनाइए। नहीं हम मैडम को हम लोग जो गूगल फॉर्म बनाया है जिसमें अभी 35 की 36 डेटाबेस ऑलरेडी आ चुका है मेरा पास, तो उसमें ओके परफेक्ट। हाँ हाँ, तो वो उसमें जो कुछ इंक्लूड व एक्सक्लूड करना है, तो मैडम बोलने से हम लोग गूगल फॉर्म का फिर दोबारा ठीक कर लेंगे उसका जो करना है, तो वो सबको बांटेंगे। नंबर 1। तो नंबर 2, ऐसा कर लीजिए, मैं जो नंबर 2 है मैडम, आप एक चेक लिस्ट दे दीजिए जे क्या क्या है जो सुबीर ने बताया, जो क्या क्या करना चाहिए, जो वैनिला प्रोडक्ट है या सिंपल है, जो एक्सक्लूजन करके ये टेंटेटिव जो है वो आपको बोलना पड़ेगा। तो वही आप एक चेकलिस्ट आप मेरे को दे दीजिए, जो लुक्रेटिव आप बोले ना, ये ऐसा देने से सबका लुक्रेटिव होगा। गॉट इट सर, मैं समझ गई सर। हाँ, वो देने से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग का टारगेट है हम लोग स्टार्टिंग ही करें 1000 मेंबर से, माने आप समझ लीजिए एवरेज 4-5 मेंबर है एक फैमिली में, तो 1000 होने में 250 फैमिली चाहिए। 250-300 फैमिली स्टार्टिंग में ही हो जाएगा मेरा ख्याल से मिनिमम, तो 1000 मेंबर तो हो जाएगा उसमें कुल मिला के मिनिमम। तो हम लोग स्टार्टिंग 1000 पकड़ के आप, क्योंकि आपका एक फिगर चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा समझ के सर फिगर बिना एज ग्रुप के, बिना चीजों के कैसे मैं निकालूं? ना, वो तो पता है, हम समझ में रहे हैं। नहीं वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप अभी कुछ भी मत निकालिए, आप खाली फ्यूचर्स बता दीजिए। हाँ, कि ये ग्रुप पॉलिसी में फ्यूचर्स अपने देना चाह रहे हैं। आई विल डू दैट सर, मैं समझ गई। उसके बाद फिर अपने जो है हम लोग सर्कुलेट करके, जैसे वो सुबीरदार ने कह रहा था कि हम पॉलिसी क्यों ले आपसे, तो उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का अपने रिप्लाई कर देंगे, दीज आर द फ्यूचर्स वी आर ऑफरिंग। उसके बाद कोई इंटरेस्टेड है तो अपना रजिस्टर्ड अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दे, we'll let you know the premium thereafter. डेफिनेटली सर, ओके। और ये क्या है ना, जो मेन बात है, पहला साल पहला जो प्रीमियम हम लोग जबरदस्ती सबका लेके कलेक्ट कर देंगे, लेकिन वो जो राजेश जी बताया सेकेंड ईयर वो रिन्यूअल में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, तो पहले क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो वो हम लोग नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग चाहता है कम से कम 5 to 10,000 पीपल का ग्रुप बनना, तो वो क्लैरिटी रहेगा तो ग्रुप हम लोग जितना खुशी बड़ा कर सकते हैं, ग्रुप बहुत बड़ा कर पाएंगे जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो हम लोग ग्रुप करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आदमी लोग क्या, हमारा जो सोच है वो ये ठीक है, इसका क्या है ना, ये तो इंडस्ट्री का बंदा है, इसका पता है ग्रेस पीरियड है तो ठीक है, इसका ग्रेस पीरियड में देंगे, ये तो वो आदत तो रहेगा ना। नहीं वो तो सही बात है, अभी डर भी है कोविड का, सबको तो सब करवा भी लेंगे। हाँ, आफ्टर अ ईयर जब ये सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी तो मे बी
वो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड सर, मैं हाँ। उसी हिसाब से बात करूंगा। हाँ वो उस हिसाब से क्या समझ लीजिए, इस साल अभी कोविड डर के आप समझ लीजिए 5,000 आदमी किया है, अगला साल देख रहे हैं जो 2,500 उसका करना नहीं चाहता है, तो जो 2,500 है कम से कम वो लोग का कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो राजेश जी बोला है हम भी वही बोल रहे हैं। ठीक सही है, ना? समझ गई जी। सुविधा और कुछ बोलना है? सुरजीत काइंडली हम लोग को ये कंक्लूड करना है मीटिंग। না না ঠিক আছে, আপাতত জন্য এটাই। স্যার যেরকম ভাবে বলেছেন ওরকম ভাবে তাহলে আমরা গুগল ফর্মে ফিল আপ করে পাঠাই, হ্যাঁ দ্যাট ইজ বেস্ট। না, আর কিছু পয়েন্টস ম্যাডামকে বললে সেইভাবে ম্যাডাম আমাদেরকে হেল্প করবে না? পয়েন্ট কিছু নেই দাদা, যতক্ষণ না আমরা ডেটা পাঠাচ্ছি উনি কিছু করতে পারবেন না। না না ঠিক আছে, মানে একটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো তো, যে আমরা কিন্তু গ্রুপ পলিসি হচ্ছে, কিন্তু কারোর জন্য ধরো আমি প্রিমিয়াম দিলাম না বলে তুমি এফেক্ট হবে না, এটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর। किंतु একটা ব্যাপার मैडम जी, मुझे एक चीज पूछना है, जो बोल रहा है हेलो मान लीजिए उसमें आपका 500 फैमिली है, तो अगर उसमें 100 फैमिली नहीं किया रिन्यूअल, तो प्रीमियम में तो रिफंड शायद नहीं आएगा। सर देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो कंसेप्ट है इसमें बहुत सारे इनपुट्स आएंगे, ठीक है। आई नीड अ डे और सो टू डिस्कस विद द पेरेंट कंपनी कि हम लोग कैसे उसी चीज को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डिफरेंस प्रीमियम में नहीं आएगा, बिकॉज हमने जो बात करी वो फैमिली वाइज बात करी है, और हम लोग फैमिली वाइज कर रहे हैं, उसको एक अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग पुट अप कर रहे हैं। एग्जैक्टली ओके, तो आई डोंट थिंक कि डिफरेंस प्रीमियम में आना चाहिए, बट आई विल जस्ट मेक श्योर कि ये पॉइंट को आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू एंड रिवर्ट यू। प्लीज मैडम, थैंक यू वेरी मच, सो थैंक्स। May I know your good name, sir? माय नेम इज सुरजीत दास। ओके सर, सुरजीत दास। ये भी मेडिक्लेम अच्छा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है ये, और ये मैडम को भी अच्छा लगेगा। ये हमारा जो IFA फेटर्निटी है, बहुत सारा आपका साथ भी जोड़ जाएंगे मेरा ख्याल से बाद में, जो खुद का जो इन्वेस्टर सर मैं कुछ अच्छा करूंगी तो मेरा भी अच्छा होगा ऑब्वियसली। तो वही सोचिए, हमारा जो IFA फेटर्निटी है, हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए कम से कम आप एक ब्रोकिंग हाउस में रख के जो जितना हम लोग को एडवांटेज दे पाएंगे वो थोड़ा दीजिए। ये बात एक ही है। डेफिनेटली सर, एंड द क्वेश्चन व्हिच he has put up is very relevant, और मैं बिल्कुल उसको ध्यान रख के सर बात करूँ। एकदम एकदम हम लोग चाहता है, ये ऐसा नहीं है बंगाल से हो रहा है, हम लोग पैन इंडिया इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो कितना आदमी हो सर, हम लोग अगर सर आप कंक्लूड कर लीजिएगा मीटिंग को, बट अगर आपके पास फर्दर भी कोई क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए, तो मुझे और क्लियर प्लान बनाने में इजी होगा। ठीक है, हम सबको बोल देता है, किसी का मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, हम आपको दे देंगे वो क्वेश्चन। जी सर, जो क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत, अभी जो किसी का याद नहीं हुआ, बाद में कोई याद हो रहा है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। तो एनी क्वेश्चन और एनी फ्रॉम दिस ग्रुप, क्योंकि हम लोग 9:34 है, अगला 2-3 मिनट में हम लोग कंक्लूड करना है। बहुत कुछ हम लोग अभी, और हम लोग आप आज मेरे को गूगल फॉर्म देख के बता दीजिए, क्योंकि हम वो गूगल फॉर्म कुछ चेंज करना है तो करके हम कल सुबह से इसका पूरा पैन इंडिया सर्कुलेट करेंगे। तो गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे, और उसके बाद आप एक चेक लिस्ट भी जो अच्छा है वो भी दे दीजिए, जो आदमी लोग वो देख के भी गूगल फॉर्म भरेंगे। ऐसा तो ऐसा, हाँ जयंत बोलून। गौतम दा, अभी आप जो गूगल फॉर्म का बात कर रहे हैं, एक बार आप मत सर्कुलेट करिए, मैम से एक बार 1-2 दिन में डिस्कशन क्लियर हो जाता है, वो फीचर्स के साथ अपने फिर उसको सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ठीक है। मैडम का जो डाटा है वो डाटा पॉइंट भी उसमें डाल देगा जो मैडम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम लोग का एक टाइम बार रख के करना पड़ेगा, ये नहीं है अनलिमिटेड टाइम। हम लोग को इसका आज 5 तारीख है, हम लोग का अगला 7 डेज में हम लोग का इसका कुछ एक डेटा बनाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं 15 अगस्त हम लोग इस पॉलिसी इशू करना चाहिए, एक पॉलिसी कम से कम स्टार्ट होना चाहिए। मैडम सही बोला कि गलत बोला?
सर मैं तो वही आपको सबसे पहले मैंने यही बात बोली थी, वी शुड हैव अ डेडलाइन। हाँ नहीं तो इसमें हम ऐड करने के उसमें हम लोग बहुत टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज जितना पेरेंट कंपनी भी इतनी इजी नहीं है, वो लोग भी अच्छा खासा टाइम लेती है कोटेशन के लिए। तो जितना भी डिसीजन है वी हैव टू मेक इट फास्ट, और मैं कोशिश करूंगी कि आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, और मेरे को जैसे जैसे कुछ जानकारी मिलती है आई विल प्रोवाइड यू गौतम दा। एग्जैक्टली तो पहले हमको जो सर्कुलेट करना है सबका पास, वही मेरे को पहले ठीक कर दीजिए, जो कल शाम तक हम उसका कर पाएंगे ऐसा। तो ये हेलो गौतम दा। हाँ বলুন 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 হ্যালো জয়ন্ত দা। হ্যাঁ বলছি গৌতম দা, হ্যাঁ বলবেন যাদের এক্সিস্টিং মেডিক্লেম আছে, ধরুন আমাদের তো এক্সিস্টিং মেডিক্লেম আছে, তাহলে আমরা তাহলে কি করব? আমরা কি পোর্ট করতে পারবো নাকি আমরা কেন এটা পারবে কি? না, হোয়াই নট? আরে না, আপনার ওটা জিজ্ঞেস একটা, করবো, আমি একটা option খুব আছে। সিম্পল বলি, আপনার একটা বাড়ি আছে আর একটা যেখানে সবাই মিলে থাকা যায়, সেই বাড়িতে আপনি যেতে পারবেন না? পোর্ট করে মানে মানে এতদিন সিনিয়রিটি না না ও ডেফিনেটলি এটা হবে কিনা একটু দেখার ব্যাপার না আছে। না সেটা তো আপনি ডেটা দেবেন, আমাদের যে অপশন ডেটা থাকবে অনুযায়ী কিনা যাবে দেখতে হবে। সবকিছু। দেখুন যদি আপনি গ্রুপের মধ্যে ঢুকছে তো এর জন্য এটা তো definitely- ইন্ডিভিজুয়াল আছে, এটা গ্রুপের মধ্যে ঢুকছে। আর ইন্ডিভিজুয়াল আর গ্রুপের অনেক ডিফারেন্স আছে বেনিফিটের, হুম হুম যেটা ইন্ডিভিজুয়ালে তার থাকে না, জন্যই বলছি। ইন্ডিভিজুয়ালে একদম থাকে না। একদম সে তো আমি জানি। হ্যাঁ তো আপনি কাজ করেন এটা জানেন তো, ন্যাচারালি হ্যাঁ, সেগুলো আপনি বরং যেখানে যা এই যে এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করলাম এর মধ্যে যদি কোনো পয়েন্ট থাকে তো সেটা দিলে পারো, ম্যাডামকে দিলে সেটা ক্ল্যারিটি আসবে। আমরা চাইছি যত সবাই আমরা যত বেশি কোয়ারিজ গুলো Query দেবো দেবো। তত ক্ল্যারিটিটা বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে ঠিক তাই না? এবং সবার লাভ হবে। হুম। আমরা কি চাইছি? আমরা মিউচুয়াল বেনিফিট চাইছি সকলের কাছ থেকে, সকলে যাতে বেনিফিট পায়। কেউ যেন পার্সোনালের একজনকে বেনিফিট দিতে গিয়ে আর বাকি 90টা লোকের বেনিফিট পাবে না, ওই জিনিস আমরা করবো হ্যারাসমেন্ট না হয়। না। সেই বেনিফিট যার জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এমন চাইছি যে এর মধ্যে 10টা লোক যাতে প্রিমিয়াম দিল না, তারপরে অন্য লোকগুলো সাফার করলো, যাতে না হয়। সাফার করে না করে একদম একদম। কারণ এর মধ্যে কিছু এরকম থাকবেই যারা প্রিমিয়াম কন্টিনিউ করবে না। এটা তো খুব সোজা হিসেব, যাতে কোনো হ্যাম্পার না হয়। এবং সবাই যখন বুঝবে যে আমি যদি পলিসিটা রিনিউ না করি তাহলে আমিই বাদ যাব, অন্য কেউ বাদ যাবে না, তখন কিন্তু দেখবেন যে সে তখন দিতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন জানবে যে ও মজা নেবে, যে ও আমি যখন প্রিমিয়াম দিচ্ছি না সবাই আটকে আছে, নৌকা ছাড়বে না, ওই যেমন আমাদের পানসি গঙ্গা এপার ওপার হই না, যে লোক যতক্ষণ না ভরছে ততক্ষণ ছাড়বে না নৌকো, ওই চিন্তা ভাবনাটা মাথা থেকে সরে যাবে, যে না ও আমার জন্য ওয়েট করবে না, নৌকো চলে যাবে, তাই না? আসলে একটু পলিসি ফিচার গুলো পাঠাতে হবে, আমরা দেখে নেবো একটু পলিসি ফিচার গুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ দেবাশিস দীর্ঘাঙ্গী কিছু বলবে? যার যার বলার আছে কিছু ওপেনলি বলে দাও, আর আমরা কিন্তু কুইট করবো, এটা অনেকক্ষণ চলছে। দেবাশিস দীর্ঘাঙ্গী কিছু বলার আছে তো বলে দাও। हाँ मैम, एक पॉइंट और बोलने का था मेरे को। जो बंदा प्रीमियम देगा उसको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। हेलो हाँ सर। हाँ, जो बंदा प्रीमियम देगा उसको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, कारण सब ये क्वेश्चन उठाएंगे बाद में, मेरे को टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये है तो वो पॉइंट अपने को और एक पॉइंट लिखना है इसमें, जो एक कमीशन तो जनरेट होगा, वो कमीशन हम लोग किसी का लेने वाला नहीं है, वो कमीशन इस पॉलिसी में डिडक्ट होना चाहिए। हाँ लेस हो सकता है वो। सही बात है। क्यों नहीं तो वो पता है, नहीं तो बोलेगा अरे कमीशन कौन लेंगे, वो बोल देगा गौतम दा कमीशन खा लिया, ऐसा नहीं कोई तो वो पहले क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कमीशन जनरेट नहीं होगा, कमीशन छोड़ के इसका प्रीमियम होगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना वो बात मैडम सही बोला कि गलत बोला? उसमें मैं वापस आती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी उसके लिए। हाँ उसके लिए मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हम क्लियर बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी का मन में कोई शौक नहीं होगा जी इसमें जो कमीशन है वो खा ले रहा है, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं किसी का कमीशन खाने का नहीं है, सब कमीशन जो कुछ इसमें वो पॉलिसी से डिडक्ट होना चाहिए, उसका प्रीमियम से, वो जैसा है वो आप उसका भी एक जो सिस्टम जैसे भी हो बना लीजिए, ठीक है ना? जी तो एक क्लैरिटी आ जाएगा ना सबका, नहीं तो फिर बोलेगे अरे इसका तो बहुत बड़ा प्रीमियम हो रहा है, इसका कमीशन कौन खा रहा है, देखिए तो वो एक सीबीआई तदंत तो चला जाएगा इसमें। ये हमारा एफआई है ना,
तो करेंगे जिसमें कमीशन कौन खा रहा है देखिए। সুবিধা আসছে কেন? সুবিধা কিছু বলো। হোয়াট এম আই সেড, ইয়েস অর নো? সুবিন নন্দী। হ্যাঁ, আমার মনে হয় ওটাতে যদি কমিশন ওরা প্রিমিয়ামের সাথে কতটা কি অ্যাডজাস্ট করতে পারবে সেটাকে যদি আমরা কোনো একটা ফান্ড করে মানে আমাদের গ্রুপ মেডিক্লেমের জন্য নেক্সট ইয়ারেরটাও রেখে দিই, যে যা আসলো না না আমি কোনো চক্করে যাওয়ার দরকারই নেই। আচ্ছা, কোনো নেক্সট ইয়ার সে বলে আমি নেক্সট ইয়ার রিনিউ করব না, তাহলে বলবে আমার কমিশনটা কে নিয়েছে। ঠিক ঠিক, তাহলে ঠিক, একদম ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে এই কমিশনটা প্রিমিয়াম থেকে অমিশন হবে। হ্যাঁ, কমিশন হবে প্রিমিয়াম থেকে। এক্স্যাক্টলি, একদম দারুণ ওয়ার্ড, কমিশন অমিশন হবে ফ্রম প্রিমিয়াম। দেবাশিস দীর্ঘাঙ্গী কিছু বলার থাকলে বলো। কোথায় দেবাশিস, কোথায়? কিছু বলছে না কেন? শুনতে পাচ্ছে দেবাশিস? কোথায় গেল? আছে তো, দেবাশিস দীর্ঘাঙ্গী আছে তো। আছে, ওর নেই, ওর বলা থাকলে নিশ্চয়ই বলতো। আর কারো কিছু? সুব্রত সরকার কোথায় গেল? আছে তো। আর কারো কিছু থাকলে একটু কাইন্ডলি বলে নাও প্লিজ। এনি কোয়ারিজ? উজ্জ্বল ধর। আর সঞ্জীব দত্ত আছে গড়িয়া থেকে। সঞ্জীব দা কিছু বলবেন? কেউ কোনো সাড়া দিচ্ছে না। না, সবাই চুপ মেরে গেছে। তাহলে পরে আমার মনে হয় আজকে আমরা এটাকে আপাতত রাখি। नेक्स्ट আমরা मैडम कब हम लोग मीटिंग कर पाएंगे फिर? क्यों आपके लेके मीटिंग करना पड़ेगा? सर मेरे को एक बार कल थोड़ा सा वर्क करने दीजिए उस पे। आई विल कम बैक टू यू। कैसे करना है मैं आपको खुद बता दूंगी। हाँ, और उसके बाद अपन कोई डेट डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, मीटिंग आज समझ लीजिए, आज है वेडनेसडे, तो हम लोग कब मीटिंग? नेक्स्ट की सैटरडे संडे मीटिंग करेंगे, क्योंकि ये तो बार-बार मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग नहीं करने से ना सैटरडे कर लीजिए। सैटरडे कर पाएंगे तो सैटरडे 8 बजे कर लेंगे, ऐसा टाइम 8 to 9। इवनिंग में नहीं हो सकता सर? वो 7, इसके बाद वो इसका पहले किसी का सब ट्रेनिंग, अभी तो हार्ड दुनिया में ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो ये अभी सबका पता चलेगा कि ये नेक्स्ट सैटरडे हम लोग मीट करेंगे। इसका जो प्रोसेस हो गया उसका सबका क्लैरिटी आ जाएगा फिर। तो नेक्स्ट सैटरडे 7 PM to 8 PM। ओके, तो वो भी हम सर्कुलेट आज ही कर देंगे, और सबको यही पे जो ग्रुप में जितना अभी प्रेजेंट है वो सबको बुला देंगे। और वो जो आप कल तक उसका गूगल फॉर्म देख लीजिए, हम उसका रिफाइन करके देंगे। उसका जो मेरा पास अभी 35-36 पीपल का डेटा आ गया, जो फॉर्म मेरा जो गूगल फॉर्म बनाया है। এমএফআরটি প্রোগ্রামটা কখন শেষ হবে? শনিবার? ओहो, 7, 8, 9 ना। हाँ, ওটা টাইম सर आप देख लीजिए, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, वो शाम तक नहीं रहेगा, वो मेरा ख्याल से हम देख देते हैं। तो 7 नहीं तो 7:30 बजे करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, राजेश जी और कुछ बोलेंगे? राजेश सर, राजेश जी गुवाहाटी में रहता है मैडम, वो बहुत बड़ा वेटरन है इंडस्ट्री में, बहुत पुराना है ये बहुत बड़ा फार्म चलाता है, बहुत बड़ा है। इसमें सब वेटरन बंदा लोग है, यहीं पे जो दिख रहा है ना, सब एक से बढ़कर एक है सब। जी आई नो, फ्यू को तो मैं जानती हूँ। हाँ, सब एक से बढ़कर एक। जी तो ये लोग काम का ही है, तो ये अच्छा आप इसका आप देंगे तो ये बहुत सारा हमारा जो फ्रेंड है इसका साथ आप काम कर पाएंगे मेरा ख्याल से। वो जब देखेंगे ना, मैं बिल्कुल मैं भी उसमें वर्क ऑन करती हूँ और मैं आप लोगों को पक्का उस पर अपडेट देती हूँ। हाँ, जैसे सुमित मुखर्जी जैसे आपको बुलाया, ये बात कर लीजिए, सुमित दा जैसे है, तो ऐसा बंदा बहुत है इसमें। ठीक है सर, मैं आपसे बिल्कुल टच में रह के वी विल डू इट सर। ओके, एकदम जितना जल्दी है हम लोग करेंगे। तो हम लोग सैटरडे 7, 7:30 बजे की 8 बजे तक हम लोग को देख लेंगे। आप मुझे जैसे आज मैसेज करा, आप वैसे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन। हाँ, टुमारो आप इसका देख के जो शेयर करना है मेरे को शेयर कर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल सर, ओके सर। हाँ, तो सुरजीत আছো? সুরজিৎ কোথায় গেল? সুরজিৎ বেরিয়ে গেছে নাকি? थैंक यू सर। हाँ,
সুরজিৎ नहीं कुछ तो आज के हमरा এটা ये राजेश जी और कुछ बोलना है राजेश सारोगी नहीं देख पा रहा है कहा है कि नहीं है नहीं कुछ नहीं बोलना है, हो गया ना ये मीटिंग कंक्लूड करना है तो थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए ना बस मीटिंग कंक्लूड कर दीजिए हम बस अभी भी बाहर निकला है, बोल नहीं पाएगा। ठीक है तो क्या है देखिए मैं तो स्टार्ट करता है कंक्लूड मैं नहीं कर पाता हूँ तो हम सुबीर नंदी को बोल रहे हैं थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए। सुबीर नंदी हमारा सबसे वेटरन भी है, वो कलकत्ता में रहता है, बागोटिया हाटी में रहता है, वो इसका साथ IFA से उसका परिचय दूसरा अच्छा है, वो लॉयर भी है तो जानकारी उनके भी है अबाउट लॉ। तो सुविधा प्लीज। মোটামুটি আমাদের যেটা হলো সেটা হচ্ছে একটা ব্লুপ্রিন্ট করছে ম্যাডাম, যেটা আর কি আমাদের কাছে স্যাটারডের আগে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। সেইটা নিয়ে তারপরে আমরা স্যাটারডেতে বসবো, বসে ব্যাপারটাকে ফাইনাল একবার যা কোয়েশ্চেন আনসার সেশন থাকবে সেখানে সেটাই হবে। তো দ্যাটস অল ফর দিস মিটিং এজেন্ডা এভরিবডি। এন্ড এটাই আমাদের হচ্ছে আমাদের টেন্টেটিভ ডেট, আমরা যাতে 15 তারিখ আমরা পলিসিটা ওপেন করতে পারি হোয়াটএভার। রাইট, একটা টেন্টেটিভ ডেট দিয়ে না এগুলো কিন্তু আমাদের কাজটা কমপ্লিট হবে না। यस 15 তো ক্লোজ মানে পলিসি ইস্যু ডেটটা তো গৌতম দা যে 15 বললেন না, 15 তে আমরা পলিসি লগিং মানে হ্যাঁ লগইন করে তার মধ্যে আমরা ডেডলাইন রাখবো। আর যা যা ডেটা যেগুলো আছে সেগুলো ব্লুপ্রিন্টে এসে গেলে আমরা গ্রুপে শেয়ার করে দিলে পরে তারপরে কোশ্চেন ও তো এক্সেল হয়ে যাবে, খুব ইজি হয়ে যাবে, গুগল ফর্ম থেকে খুব ইজি আছে। একদম একদম ঠিক আছে। थैंक यू सो मच सबाइके माने और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना जीत ढंग से आज आप सबको समझाया, मेरा ख्याल से सबका अच्छा ही लगा। कोई क्वेश्चन है तो हम आपको पास दे देंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बाद में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, गुड नाइट एवरीबॉडी। Quit our program today. Thank you so much.